ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تسنیم احمد قریشی صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. داخلہ کے اسٹیٹ منسٹر ہیں اور انہی کی منسٹری کے انڈر آتے یہ سب ٹینکرز اور اس قسم کے جتنے حالات ہیں جو حالات پاکستان میں دہشت گردی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. ظاہر تسنیم احمد قریشی صاحب کی اپنی منسٹری جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عابد شیر علی صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں احمد رضا قصوری صاحب. انہوں نے ابھی تازہ پرویز مشرف صاحب کی نئی پارٹی جو ہے آل پاکستان مسلم لیگ اس کو جوائن کیا. قصوری صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ حالات خراب ہوئے ہیں، جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اب جو نیٹو فورسز افغانستان سے آگے پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں، اس سب کے ڈانڈے جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب سے جا کے ملتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اجازت دی تھی اور یہی سے حالات خراب ہوئے. اب انہوں نے یعنی آپ کی پارٹی نے ایک نئی پارٹی لانچ کر دی ہے پرویز مشرف صاحب نے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر پرویز مشرف صاحب واپس آ جائیں پاکستان میں تو وہ ان حالات کو ٹھیک کر لیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو سیلاب آیا ہے وہ سیلاب اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرز، پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل ایشوز کو رول اپ کر کے بحر عرب میں لے گیا. آج آپ کے اینکر مین سے آئی ڈرا وزڈم اینڈ انفارمیشن. جہاں جاتے ہیں پیپل آر سو ڈی لنکڈ وتھ پولیٹیکل پارٹی اینڈ دی لینگویج اگر ان کی دیکھیں، ان کا جو ایکسپریشن ہے جو ان کا وہ اتنا اگریسو ہے کہ وہاں سے نظر یہ آتا ہے کہ ایک پولیٹیکل وائڈ کریٹ ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ لوگ کیپیبل نہیں ہیں ان حالات میں کچھ بھی نہیں، آئی ول ناٹ سے اینی تھنگ نیگیٹو. میں تو آئی ایم این اینالسٹ، میرا کام ہے دیر از اے پولیٹیکل وائڈ اینڈ لیڈرشپ کرائسس. یہ اسی طرح کی سچویشن ہے کیونکہ میں تو 47 ایئرز میں پبلک لائف میں ہوں. 63 میں نے ایوب خان کے خلاف موومنٹ لیڈ کی تھی، تو 47 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے اس ملک کے نشیب و فراز سے خوب واقف ہوں. اسی قسم کی سچویشن 66 میں جب ایوب خان ڈکلائن کر رہا تھا، بھٹو بینگ دی ایکس فارن منسٹر آف ایوب خان، پورے ملک کو انہوں نے اپنے پیچھے لگا دیا. اینڈ ہی ریئلائز فاؤنڈ انٹیلیجنٹ آدمی، اس کی آنکھ نے کیچ کری کہ وائڈ ہے اینڈ لیڈرشپ کرائسس ہے. اور وہاں بھی اس زمانے میں بھی کہا جاتا تھا اب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کون سا امپورٹنٹ آدمی ہے؟ یہ پرویز مشرف دوسرے بھٹو ثابت ہوں. میں تھوڑا میں عرض کر لوں، اس کو فنش کر لوں. مجھے یاد ہے کہ 2 دن کی کنونشن ہوئی. 2 دن کی کنونشن کے بعد نوائے وقت اس کے پاکستان ٹائم جو کہ میجر پیپر تھا، اس میں ایک نیوز آئٹم آیا 6 پیج پر، اور وہ لکھا بھی ہوا تھا. خالد حسن جو بعد میں پریس سیکرٹری بھٹو صاحب کا بنا، اس کا پہلا ہیڈنگ تھا آڈ بالز گیٹ ٹوگیدر. دوسری ہیڈنگ تھی، پھر ابھی تک میں کٹنگ پڑے ہوئے ہیں. دوسرا اس کا ہیڈنگ تھا کہ بھٹو وائلڈ کلیم ٹون سرنڈر. پھر سٹوری یہ تھی کہ ٹرن بائی ٹرن جیسے کالی ڈبیٹ میں ڈیلیگیٹس آئے لیکن نو باڈیز، اور ان میں ایک آدمی تھا بھٹو. نہیں، وہ بھٹو نہیں، میرا نام لے کے جس کا جو ہوا ویری پاورفل. نہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ دیکھیں وہ بہت پوری ہسٹری ہے نا جی. آپ مجھے سمپل یہ بتائیے کہ کیا تھا مشرف، آپ دیکھیں نا، آپ نے جو 47 ایئر کی پولیٹیکل لائف کے بعد آپ نے پرویز مشرف کو جوائن کیا ہے، اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ کرائسس جو ختم ہو جائے گا؟ عرض میں یہ کرتا ہوں کہ کوئی نہیں تھا، لیکن وہی لوگ جو ان نون تھے وہ 70 کے الیکشن کے بعد ایک نون فگر بن گئے اور انہوں نے بڑے بڑے برج الٹا کے رکھ دیے کیونکہ ویکیوم تھا. مجھے اسی قسم کا ویکیوم پھر نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس ویکیوم کو پرویز مشرف کوئی بھی کر سکتا ہے. نہیں، آپ نے دیکھا پارٹی جوائن کی نا ابھی تازہ بات یہ ہے، تو پرویز مشرف سے اوپن ٹو ایوری باڈی، اینی باڈی. ابھی دیکھیں وہ اب یونیفارم تو نہیں، ہی از ناٹ کمنگ ان یونیفارم، ہی از کمنگ ان شلوار قمیض. آپ تھوڑے سے میرا سمپل سا سوال یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ کا کرائسس ہے، پرویز مشرف ان کو اس کرائسس کو فل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیٹس وائی دیکھیں نا، ہر ایک آدمی پبلک لائف میں اسی لیے آتا ہے ٹو اچیو سم تھنگ. نو آدمی جسٹ فار ویسٹ آف ٹائم تو نہیں آتا نا. اب جو امریکن انویژن کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر، نیٹو فورسز ابھی انویژن کر رہی، ان کو بھی پرویز مشرف ہی روک سکتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جنرل مشرف کی باقیات ہیں، یہ مطلب اسٹیٹ ود یو کہا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کوئی پاور میں آئے کو کوئی 1-2 ہفتے ہوئے، 2-2.5 مہینے ہوں تو آدمی کہہ سکتا کہ مجھے بھائی یہ چیزیں ورثے میں ملی ہیں، میری جو پریڈیسیسر گورنمنٹ ہے.
2.5 साल के बाद when half period constitution period is all over और आपको कोई पॉलिसी पॉइंटर ना इकोनॉमी की तरफ ना लॉ एंड ऑर्डर की तरफ कहीं नजर ना आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में सिर्फ ये कह देना कि ये हमें विरसे में मिला है, ये काफी नहीं। अब शेर अली साहब की तरफ से अब शेर अली साहब, एक तो ये है कि आपने परवेज मुशर्रफ साहब की तकरीर सुनी होगी जो लंदन में उन्होंने की थी, बर्मिंघम में। उसमें एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने पर्सनल अटैक्स भी किए, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इनको 2 मरतबा हुकूमत करने का मौका मिला लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सके, पाकिस्तान की आवाम की जो उमंग है उनके मुताबिक ये काम नहीं कर सके। अब वो खुद आना चाह रहे हैं परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में और आके वो अनाने इक़्तिदार संभालना चाह रहे हैं सियासत में आके और इन तमाम मसाइल को हल कर लेंगे। आपका क्या ख्याल है कि आप लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आप वो चीज डिलीवर नहीं कर सके जिसकी डिलीवरी के लिए परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ ला रहे हैं? देखें, जो सब परवेज मुशर्रफ की जो लैंग्वेज थी, टोन थी उस दिन, और आपने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की स्पिरिट देखी होगी, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की बड़ी मुदब्बराना और शराफत के साथ। वो हमेशा मुशर्रफ को कभी उन्होंने उस तरह लहजे में टारगेट नहीं किया, और जो परवेज मुशर्रफ ने उस दिन किया वो ऐसे लग रहा था जैसे वो स्टेज ड्रामा हो रहा हो और कोई कॉमेडी कर रहा हो और अपने जो उनके सामीन है उनको हंसाने का मौका दे रहा हो। तो ये देखें कि ये शख्स जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, पाकिस्तान की मुंतखब भेजा, और वो शख्स जिस पर आर्टिकल 6 का नफाज होना चाहिए था, बस पीपल्स पार्टी ने उसे रेड कारपेट देकर मुल्क से फरार करवाया, जिसको अब ये बेनजीर भुट्टो का कातिल भी डिक्लेयर करते हैं। चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास 2.5 साल का इक्तदार आया और फौजी डिक्टेटर्स ने शब खून मार के इनको घर भेजने की कोशिश की, साजिश हुई। लेकिन ये शख्स पाकिस्तान के इक्तदार के साथ तकरीबन 10 से 11 साल लिपटा रहा और इसके पास ये फ्री होल्ड था इसके पास, और ताकत का सरचश्मा कहलाता था परवेज मुशर्रफ, और ऑल इन ऑल था पाकिस्तान में। दिन तो दिन रात वो लोग उसको 20-20 साल सदर मुंतखब कराने के जो वो दावेदार थे वो आज स्क्रीन से आउट हो गए, वो नजर भी नहीं आते। तो ये इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के आइन के साथ खेलते रहे हों, जो पाकिस्तान की सालमियत को दांव पे लगा चुके हों, जो कारगिल से शिकस्त खाकर अपनी कौम को जग हंसाई की तरफ लेकर जागते हों, और ये शख्स जो मुंतखब हुकूमत को तोड़कर माशाल्लाह लगाकर आया, आज वो जमहूरियत की बातें करता हो, वो जमहूरियत के गीत गाता हो। देखिए, वैक्यूम तो है ना भाई, वैक्यूम 11 किस चीज का वैक्यूम? 11 साल वो डिक्टेटर इस मुल्क में रूल करता रहा। कसूरी साहब ने कहा कि जी मुल्क की हालात के हवाले से बात की, क्या उसको नहीं पता था कि मुल्क में बिजली नहीं होगी, डैम बनने चाहिए? क्या उस शख्स को नहीं पता था कि अदालतों का एहतराम किस तरह किया जाता है, आइन की पासदारी किस तरह की जाती है? लंदन की ठंडी हवाओं में बैठकर पहले पाकिस्तान का नारा लगाना, तो मुझे सवाए उनके इस बयान पर हंसी के अलावा, और वो मैं एक स्टेज, अच्छा ये काम तो आपकी लीडरशिप भी करती है लंदन में बैठ के, माफ कीजिएगा, कभी भी उन्होंने नाजेबा ठंडी हवा में बैठ के आप लोग पाकिस्तान का दावा वहां मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू, कोई उन्होंने इस तरह का दावा नहीं किया। उन्होंने कोशिश की, शहबाज शरीफ साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी, मुल्क में आने की। वो डिक्टेटर था, वो कहता था जी मैं ही सुप्रीम लॉ हूं पाकिस्तान का, मैं नहीं आने दूंगा इनको, मेरी मर्जी होगी तो आएंगे, तो वरना ये पाकिस्तान में आएंगे नहीं। आज वही शख्स आज मुल्क में आने के लिए दरवाजे खटकाता फिर रहा है, और उसको अगर इतना ही शौक है सियासत करने का, पाकिस्तान में आए। वो जो अरबों खरबों डॉलर वो वैसे कुरैशी साहब की तरफ जाना है, लेकिन आइन तो तोड़ा था मुशर्रफ साहब, आइन तो तोड़ा था मुशर्रफ साहब ने जी, लेकिन आपकी अदालतों ने उस सारी एनवायरमेंट्स को जफर अली शाह केस के अंदर जो 2000 में आया, नहीं आइन तो तोड़ा था। मैं तो आइन कानून का आदमी, तो मैं तो कानून की बात करता हूं। तोड़ा था, ठीक है, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया कि दीज वर द कंडीशंस वर एज सच कि इसके अलावा कोई और तरीका कार तो 3 नवंबर को जो तोड़ा दोबारा उसको अपना 11 रुकनी जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट का, उसने उसको सिर्फ ये इसको जस्टिफाई नहीं किया, लेजिटिमेसी ही नहीं दी, तो 3 नवंबर 2007 को 3 साल का पीरियड भी दिया, और साथ ये भी कहा कि आप
आइन के अंदर तरमीम भी कर सकते हैं अगर। अच्छा, वो सही किया था या गलत किया था? जो अब मुझे नहीं पता, पुरानी बात मैं तो जो अदालत का ने फैसला कर दिया। अच्छा, ये 3 नवंबर को मेरा आपकी वसात से सवाल है कि आपने माशाल्लाह आइन पढ़ा है और बड़े काबिल वकील हैं, क्या पाकिस्तान का आइन इस चीज की इजाजत देता है कि कोई डिक्टेटर हुकूमत को घर भेजे? बस मुझे आप आइन की बात कर दें, बाकी चीजों को छोड़ दें कि आप किसकी, आप जमात के हैं, आप वकील हैं। मैंने एज ए लॉ स्टूडेंट आपसे एक सवाल किया है, क्या पाकिस्तान का आइन में तो आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कैसे अपने जस्टिफाई करने के लिए एक बात को तो मैं कह दूंगा आइन में तो कोई गुंजाइश, लेकिन एक है लॉ ऑफ नेसेसिटी, हैंस कैल्सन की थ्योरी, जिसका मुद्दा यह है कि a thing which is otherwise illegal, necessity makes it legal. बिल्कुल सही। और अगर ताकतवर भी हो नेसेसिटी, तो वो मतलब कि हमारे यहाँ लॉ ऑफ नेसेसिटी पर नुसरत भुट्टो केस लॉ ऑफ नेसेसिटी पर हुआ। हमारे यहाँ जो भी ताकतवर होगा वो हर चीज को लीगलाइज कर रहा है। बड़ी बात है। कुरैशी साहब को शामिल करने दें अपने साथ। कुरैशी साहब, दो चीजें, एक तो नेटो फोर्सेज की एक तरफ हम जो आ रहे हैं उनकी सप्लाई लाइन बंद है, सड़कों के ऊपर सारे टैंकर्स खड़े हैं, कंटेनर्स खड़े हैं। कुछ इस्लामाबाद में उन्होंने 28 टैंकर जो हैं कल नामालूम लोगों ने उनको जला भी दिया। और जब हमने इनकी सप्लाई मुअत्तल की थी तो हमारा ख्याल ये था कि नेटो जो है ना अब वो ऐसी जगह पे आ जाएंगे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन उन्होंने बजाय कि मुज़ाकरात करते उन्होंने 3 ड्रोन हमले एक ही दिन में 7 घंटों के अंदर किए और उसमें 18 लोग मारे गए। अब हमारा क्या ऑप्शन होगा हमारे पास? क्या हम खामोश रहेंगे, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, उनसे कहेंगे भाई खबरदार अगर आइंदा आपने इस किस्म की हरकत की तो हम रिटेलिएट करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट का जो वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है, और मौक़िफ़ वही होता है जो अवाम का मौक़िफ़ होता है। और हमेशा पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आई है उसने अवाम की जो बात है वो की है। तो इसी तरह जब नेटो के जो अटैक्स हुए हैं तो उसके बाद बिल्कुल उनको पहले वार्न किया गया कि ये जो हरकत है आपकी हमें बर्दाश्त नहीं। ठीक। और उसके बाद भी वो जब प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर हमने वाज़ेह तौर पे उनको पैगाम दिया कि उनकी सप्लाई को बंद कर दिया। और उनको साथ ये भी बताया गया कि हम आपके इत्तेहादी जरूर हैं लेकिन हम आपके तफैली नहीं। बिल्कुल ठीक। तो चूंकि मैं समझता हूं शायद उनके ज़हन में वही दौर होगा कि जनरल मुशर्रफ का कि जो वो करना चाहते हैं करें, क्योंकि वो जनरल मुशर्रफ जब इख्तिदार में आया तो अमेरिका की सरपरस्ती में और तमाम जो कुव्वतें थी उनकी सरपरस्ती में वो इख्तिदार में आया। आप लोग और एक जमहूरी गवर्नमेंट को उसने डिसॉल्व किया और रातों रात उसके ऊपर उसने कब्जा किया। और आज हम जो बात ये रियलाइज करवा रहे हैं, एक मरतबा नहीं करवाई हमने, ये सेकंड टाइम हम करवा रहे हैं। और मैं समझता हूं हमारी जो लीडरशिप है उसका हमेशा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो जो एक बात की जाती थी कि जो ये दहशतगर्द है पाकिस्तानी एजेंसियों ने तैयार की है, उसके ऊपर भी आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने, इटली के अंदर बाकायदा यूरोपीय मीडिया ने इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया था। अगर आपको याद होगा कि ये हमारी पैदावार नहीं है, ये CIA की पैदावार है, उनसे पूछे। जो हमारे ऊपर इल्जामात आप लगा रहे हैं ये बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमने सप्लाई लाइन होगी बंद, बात ये है कि लेकिन 2 तारीख को उन्होंने फिर हमले कर दी। हमने ये वादे उनको किया था कि आपकी इन हरकत की वजह से एक तो आपकी नफरत जो है अवाम के अंदर ज्यादा बढ़ेगी और कतन हम ये चीज अलाउ नहीं करेंगे कि नेटो फोर्सेज आकर पाकिस्तान के हदूद के अंदर ऐसे कोई मामला करें। 3 ड्रोन हमले उन्होंने। जी, मैं समझता हूं आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं नेटो के जो सरबराह हैं उनसे उनकी मुलाकात भी है और हम ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से के साथ उनको अगर ड्रोन करवा रहे हैं नहीं रोकते हम क्या करेंगे? देखिए, ये एक गवर्नमेंट, मैं यहां पर बैठकर अकेला कोई डिसीजन नहीं कर सकता, लेकिन एक वाज़ेह जो कौन डिसीजन करेगा? मेरी सुन ले, हमने जो एक वाज़ेह पैगाम उनको दे दिया है कि हम आपकी तो फैली नहीं है, हम बिल्कुल आपकी तादी जरूर हैं लेकिन दहशतगर्दी के अगर अब ड्रोन हमला हुआ नहीं है कि यहाँ पर आप अगर अब ड्रोन हमला हुआ अगर अब ड्रोन हमला हुआ तो हम क्या करें? देखिए जी, एक वाज़ेह पॉलिसी हमने जो एक डिक्लेयर कर दी है उनको, तो उनको मेरा ख्याल है इन चीजों को रियलाइज भी करना होगा और अवामी रिएक्शन, ये देखने ये जो आग लगी है ये एक अवामी रिएक्शन भी हो सकता है और अवाम के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है इन चीजों का, तो इसलिए ये मामला दुरुस्त नहीं रहेंगे और हम तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए थे। अच्छा, ये बताइए, अगर परवेज मुशर्रफ आ जाए पाकिस्तान वापस तो क्या वो इन तमाम इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, वो हालात को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनके वेस्ट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात? देखिए, सबसे पहले तो जो उन्होंने उस दिन मियां नवाज शरीफ साहब एक जमहूरी पार्टी के बहुत बड़े लीडर है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनके बारे में
اور ان کے دوستوں کے خصوصی پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی، ابھی ان کے 1-2 دن ہیں، ہمیں بالکل سیاست کے اندر میں سمجھتا ہوں تربیت ہونے والی ہے، کیونکہ وہ ان کا فوجی مائنڈ ہے ابھی تک، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اب بھی وہ ان کے ذہن میں ہی ہے کہ میں جرنیل ہوں اور میں پاکستان کا ایک پوری